Hello friends, in this lecture of Indian polity and constitution, we are going to discuss a very important topic of Indian constitution, that is emergency provisions. So as the name suggests, emergency provisions. So it is used in such a situation when the country is facing some kind of crisis, or in other words we can say when the situation of the country is not normal in nature. So as we have discussed ki, in normal days the constitution is enforced and everything is worked according to the constitution, the governments run according to the constitution. But it is a situation when the country is not facing a normal situation, it is a very harsh situation, yeah, something crisis is there. Crisis may be in terms of war, in terms of external aggression or XYZ, and things will be there. So emergency provisions is mentioned in a part 18 of Indian constitution. We have discussed different parts, part 1, part 2, part 3. In the same way, in a sequencing, it is mentioned in a part 18 of Indian constitution, emergency provisions. So the articles covered in the emergency provisions is article 352 to 360, article 352 to 360, 352, 353, 354, 55, 56, XYZ till 360. So these are the articles that is covered under the emergency provisions. Article 350 se leke article 360 in the Indian constitution, part 18 talks about the emergency provisions. So one by one we will discuss each and every articles which is important from exam point of view. See, article 352, 356 and 360. These three articles are very important, and directly the questions in examination are asked from these three articles. So we will discuss one by one all three articles. So article 352 talks about the national emergency, article 356 talks about the state emergency, and article 360 talks about the financial emergency. So basically there are three type of emergency. Article 352 that talks about the national emergency, article 356 that talks about the state emergency, and article 360 that talks about the financial emergency. So now the question arises, who will impose the emergency? Who will impose the emergency? So if the president is satisfied on certain grounds, like certain grounds are war, external aggression, armed rebellion, or any kind of threat that the country is going to face, the president can impose, proclaim national emergency. See, on grounds which president can impose national emergency are war, external aggression, armed rebellion. See, one by one we will discuss what is war. War means a formal declaration between two countries that they are entering into the conflict, some conflict between two countries, that is a war. मतलब official declaration हो जाना कि दोनों country के बीच में लड़ाई हो रही है, that is a war. See, external aggression. External aggression में there is not any official declaration, but there is a threat that other country foreign country might attack India, XYZ. Armed rebellion. So armed rebellion, these two grounds, war and external aggression, are from disturbance from other country. Armed rebellion is an internal factor that is responsible for emergency. Internal factor that is responsible for emergency. Earlier this internal disturbance word is used in place of armed rebellion, and that was replaced by 44th Amendment Act. So new thing, armed rebellion. Now we are using armed rebellion. So till date means since independence till date, we have imposed 3 times national emergency. So we will discuss one by one. First, जो national emergency जो impose हुई थी, that is in October 1962, that was continued till January 1968 when the China attacked India. So this is the first national emergency that is imposed.
और प्रेसिडेंट अनाउंस्ड इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। चाइना ने इंडिया को अटैक किया था 1962 में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। ये वाला ग्राउंड देख रहे हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। At the same time, the president has also suspended all fundamental rights using article number 359. Which article? Using article number 359, president also suspended all fundamental rights except article 21 and 22. So I hope you know the article number 21 and 22, right to life and protection against arrest and detention, वो आपको पता होगा, ठीक है। सो अभी फर्स्ट इमरजेंसी हम लोग की ख़त्म हुई ही नहीं थी कि हमारा वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ। फर्स्ट इमरजेंसी नहीं ख़त्म हुई थी और हमारा वॉर डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान के साथ अप्रैल 1965 में, है ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1965 में वॉर डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान के साथ, दैट टू ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो अप्रैल में वॉर शुरू हुआ और ऑफिशियली इट वाज डिक्लेयर्ड इन सितंबर कि वी आर इनटू ऑफिशियल वॉर विद द पाकिस्तान इन सितंबर 1965, ठीक है, ओके। सो और आते आते ये चला जनवरी 1966 तक चला और जनवरी 1966 में सीज फायर हो गया और ऑफिशियली वॉर ख़त्म हो गया। या आपको मालूम होगा एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। और चली रही थी, अभी फर्स्ट इमरजेंसी चली रही थी, तो बहुत सारा मिसयूज़ होने लगा इमरजेंसीज का। सो लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड public campaign was started against this misuse of the emergency. Even the international focus भी शिफ्ट हो गया इंडिया में कि इंडिया में अभी तक इतने लंबे समय से इमरजेंसी चल रही है और उसका बहुत सारा मिसयूज़ होने लगा। सो 1968 में इसको आके हमने इस इमरजेंसी को रिवोक कर दिया। फाइनली अब हम बात करेंगे सेकेंड इमरजेंसी की, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी की जब इम्पोज हुई। सो देखिए सेकेंड नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई जब पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया को ऑन 3 दिसंबर 1971 को, तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई, सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। इस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स लेके आई, लाइक मीसा एक्ट, कॉफ़ी पोसा एक्ट एंड मैनी अदर एक्ट की जो कि यूज़ किया गया एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। लाइक मीसा एक्ट है, मीसा एक्ट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि मीन्स कि किसी भी कंडीशन में इंटरनल सिक्योरिटी को इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए हुए रखने के लिए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है ऑन एनी ग्राउंड्स की नेशनल थ्रेट है या नेशनल इंटीग्रिटी या किसी भी तरीके से नेशनल में प्रॉब्लम क्रिएट करिए, तो किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है ऑन दिस मीसा एक्ट एंड कॉफ़ी पोसा एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे अरेस्ट होने लगे, बहुत ह्यूज अरेस्ट हुआ। सो ये जो एक्ट है, जो मीसा एक्ट और कॉफ़ी पोसा एक्ट, दिस एक्ट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। मीन्स कि प्रिवेंटिव मीन्स कि कुछ होने से पहले ही हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम हो ना, कुछ कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, इससे पहले ही हम लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 1974 नवंबर 1974 के आते आते गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत सारा इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कंट्री में। उसी टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी सेंटर में। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया फॉर द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट और एक बैन लगाया कि अगले 6 ईयर तक कोई भी पब्लिक ऑफिस को एज्यूम नहीं कर सकती दिस गवर्नमेंट। सो इंदिरा गांधी हैज़ अपील्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे वैकेशन में शायद फंक्शन नहीं कर रहा था, जो भी है वैकेशन में थे सुप्रीम कोर्ट। सो अपोजिशन वाज स्टार्टेड ट्रोलिंग द गवर्नमेंट कि आप रिज़ाइन करिए, XYZ अपोजिशन रिज़ाइन करने की बात करने लगी। सो जो तीसरी इमरजेंसी आती है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में जो थर्ड इमरजेंसी आती है हमारी, वो चल रही थी थर्ड इमरजेंसी जून 1975 को, जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसको ध्यान दीजिएगा, दिस वाज नॉट एन एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो तीसरी इमरजेंसी लगाया गया, ठीक है। जब तीसरी इमरजेंसी देश में लगी तो इंदिरा गांधी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
So Indira Gandhi has written, Prime Minister of India has written letter to the President of India to impose the emergency. और इस emergency में the Prime Minister has not consulted the Council of Minister या Cabinet Minister को consult नहीं किया emergency लगाने को। इसके बाद ये changes आएंगे कि बिना Council of Minister की advice के emergency लगाई नहीं जा सकती, उसको हम आगे discuss करेंगे। जब ये तीसरी इमरजेंसी लगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, सो मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, फंडामेंटल राइट्स वाज कर्टेल्ड, अपोनेंट्स अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा अरेस्ट किया गया, और प्रेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रेस में पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई। तो अगर जो भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी चल रहा था तो वो पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं रहा था, और मीसा एक्ट का बहुत सारा यूज़ हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस टाइम पे बहुत सारे जो अपोजिशन के जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया, और प्रेस में पूरी सेंसरशिप लगा दी। पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स वाज कर्टेल, अपोनेंट्स वाज अरेस्टेड, दिस वाइज। और जो तीसरी इमरजेंसी रिवोक हुई, दैट वाज ऑन 23 मार्च 1917। So in this we have discussed all three national emergency, first, second and third। ये तीनों नेशनल इमरजेंसी लगी थी अंडर आर्टिकल 352, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। दूसरा टाइप का जो इमरजेंसी होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, वो जनरली पर्टिकुलर एक स्टेट में लगती है, लाइक यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, XYZ पर्टिकुलर स्टेट में लगेगी। और जो तीसरे टाइप की इमरजेंसी है जो मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 360 में, दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो जो कि आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लगी। सो आई होप कि जो तीनों टाइप की इमरजेंसीज है वो आपको क्लियर हो गई। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरी इमरजेंसी है दैट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी भी टिल डेट आज तक इंडिया में कभी भी नहीं लगी।